Good morning, everyone. Today we are going to start second topic of second chapter of Geography class 8, that is land, soil and water resource. Today we are going to discuss and study about the soil resource. In last class we studied the land resource, where we see the importance of lands and what are the uses of land and land use patterns in the world around the world. And we also see the classification of land and problems of land and the conservation of land and some methods to conserve the lands. In today we are going to study about the soil and its other factors. Soil, the topmost layer of the earth crust, is made up of a thin layer of soil. Soil is a fine mixture of mineral and organic matter. It is formed over thousands of years as rocks are broken down into smaller and small pieces by the agents of erosion, water, wind, and glacier. Soil is a vital resource as it is needed to grow crop. The fertility of the soil is determined by the content of mineral and organic matter and the capacity to retain the right amount of water. Soil profile. Soil is made up of different layers of horizon. The vertical arrangement of these layers in a section of the soil is called the soil profile. Surface layer O, indicated in picture also, where in top we indicate as O. This is a thin but highly fertile layer consisting of leaf litter and humus. It is the layer where we grown our crops with the help of this layer. After that, topsoil. This layer is dark in color with a fine texture. Humus is crucial for plant growth. Subsoil. This layer consists of sand, silt and clay and has a small amount of organic matter. Parent rock material or rock, we indicate in as a C. This layer consists of pieces of rock. This is the parent rock from which topsoil and subsoil have been formed. Bedrock. This layer consists of solid rock type of soil. There are different kind of soil based on color, texture, content and fertility. Factors that determine the nature of the soil include topography of the region, climate, composition of the parent rock, moisture, nature of the organic matter, and the time taken for the process of formation. Based on the physical properties of soil, they can be classified in different types. Alluvial soil. This is a rich and fertile soil ideal for the cultivation of most type of crop, which is mainly made by the depositional work of river. Black soil. This soil is usually found in area which covered by lava million of years ago. It rich in iron which causes it to withstand wind and water erosion. It is ideal for the growth of cotton. Red soil. This soil is red in color due to high iron content, low in nutrition and humus. It is difficult to cultivate in it. It is good for growing millets, cotton, etc. Laterite soil. This soil is not naturally fertile and has to be treated with fertilizer to render it cultivation. It is suitable for cultivating jute,
fodder crop, arid and sandy soil. This soil is found in the dry and desert region of the world. It is low in humus and moisture content but can be made cultivable with adequate irrigation. Mountain soil. This soil is usually shallow, fertile, is lower in the steeper part of the mountain and higher in the flatter part. This soil also known as the peaty soil. Conservation of soil. When agent of erosion like water, wind, ice or gravity displace the upper layer of the soil, it is called soil erosion. Soil erosion leads to loss of fertility as it removes the layer of the soil that contain organic matter and nutrients, exposing the subsoil. Soil erosion is one of the main causes of soil degradation. We can take various measures to prevent soil degradation and conserve soil. Mulching. Mulching is done by covering the bare ground between plants with a layer of organic matter like straw or peat. Contour bunding. Contour bunding or contour barrier is the practice of building barrier called bound across slope. The bounds follow the contour of the land. Terrace farming. The process of making terrace on steep to grow crop in known as terrace farming. Crop rotation. Soil can be conserved by growing different crops in succession in the same field to prevent the fertility of the soil. Shelter built. In the coastal and dry region where wind can blow away the topsoil, rows of trees are planted to act as shelter belt. Plugging. In area without tree cover surface runoff often carries away the topsoil, leading to the formation of deep channel called gullies. To prevent this, the gullies are plugged with piles of rock to slow down the flow of water. This method of preventing soil loss is called plugging. जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्स में हम लोग पिछले क्लास में लैंड के बारे में देखा था। इस क्लास में हम लोग सॉइल के बारे में देखेंगे। सॉइल जो है वो मिट्टी का सबसे ऊपरी परत या हमारे पृथ्वी का क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग होता है। ये बहुत ही पतला भाग होता है जिसको बनने में कई साल लग जाते हैं और यह मिक्सचर होता है, सम्मिश्रण होता है खनिज और जैविक पदार्थों का। और ये इतना ज़्यादा इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है कि ये पत्थरों के साथ मिलकर ह्यूमस क्रिएट करता है और इस पर खेती की जा सकती है और इससे फसल का उत्पादन किया जाता है। मृदा मिट्टी सॉइल जो है एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से है क्योंकि इसी के बलबूते हम जो है फसलों का उत्पादन करते हैं। मृदा की उत्पादन क्षमता मायने रखती है कि उसमें कितनी मात्रा में मिनरल्स या खनिज पदार्थ और जैविक पदार्थ मिलते हैं। ये उस साथ ही साथ उसमें कितनी क्षमता है कि पानी को अपने आप में बनाए रखेगी। इससे क्या हो सकता है, पैदावार अच्छी होती है फसलों की। सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल जो है वो हमें बताती है कि किस तरीके से मृदा का संरचना हुआ है। यह एक क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंजमेंट दिखाया जाता है कि किस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन बना है, उसको हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें सरफेस लेयर जो कि पिक्चर में तुम हमें ओ से लिखा हुआ डार्क ब्लैक में दिख रहा होगा, उसमें दिखाया गया। इसमें यह बताया गया कि ये सबसे ऊपरी हिस्सा होता है और बहुत ही पतला होता है और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। इसमें पेड़ पौधों के पत्ते, टहनियाँ सड़ गल के उसमें मिलती रहती हैं, पत्ते भी उसमें रहते हैं और इसी के चलते जो है सबसे ज़्यादा ह्यूमस इसी में होता है। उसके बाद टॉप सॉइल, ये ठीक सरफेस लेयर के नीचे पाया जाता है और इसका कलर जो होता है गहरा भूरा होता है और इसका बहुत ही महीन संरचना होता है। इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो कि पेड़ों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद सब सॉइल, यह लेयर जो है ठीक छोटे छोटे बालू के कण, क्ले
ये सब के पार्टिकल्स इसमें अपने मैटर रखती है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर भी अपने साथ में रखती है। इसके बाद पैरेंटल मटेरियल, ये लेयर जो होता है वैसा लेयर है जहाँ से ऊपरी सभी सभी चाहे टॉप सॉइल हो सब सॉइल हो, इन सभी का निर्माण जो है इन्हीं पैरेंटल मटेरियल के द्वारा ही हुआ है। बेड रॉक, यह लेयर जो है ये सिर्फ सॉलिड रॉक को अपने में रखती है, जो कि सबसे दृढ़ क्षेत्र होता है जो पत्थरों से बना होता है। अब देखेंगे सॉइल के प्रकार। हमारे विश्व में कई प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, जिसको रंग, संरचना, उनमें पाए जाने वाले मिश्रण, उत्पादन क्षमता के आधार पर हम उसको बांटते हैं। साथ ही साथ उसमें कैसा उत्पादन क्षमता होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये डिटरमाइन होता है वहाँ के उस क्षेत्र के टोपोग्राफी, वहाँ के क्लाइमेट से। और साथ ही साथ उसमें पैरेंटल रॉक में क्या क्या है, उसमें कौन से मिनरल का मिक्सचर है, कौन से ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर है, ये सभी जो है डिटरमाइन करते हैं कि वो सॉइल किस टाइप का होगा। अब देखेंगे भौतिक आधार पे मृदाओं में पाए जाने वाले जो भौतिक गुण होते हैं उनके आधार पे निम्न प्रकार के मृदा पाई जाती हैं या मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एलुवियल सॉइल, ये सबसे ज़्यादा ह्यूमस और उपजाऊ मृदा होती है, ये जो कि खास करके कृषि क्रियाकलाप में सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए जो पत्थरों के टुकड़े, पेड़ पौधों के टुकड़े, बाढ़ के समय नदियों के बीच में जो गाद होता है उसके जमने के द्वारा ये बनती है। ब्लैक सॉइल, ये सामान्य रूप से अगर उन जगहों पर पाया जाता है जहाँ पे कभी पुराने समय में, जो कि लाखों समय पहले वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, वोल्केनिक एरप्शन हुआ होगा, उसके ठंडा होने जमने के बाद वहाँ पे जो मृदा का निर्माण हुआ उसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें जो है इरोजन भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यह मृदा जो है वो सूत या कॉटन की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। रेड सॉइल, यह मृदा का निर्माण जो है ये इसके रंग के कारण होता है, यह रंग में लाल होता है, इसके चलते इसका नाम जो है कि लाल मृदा रखा गया है, रेड सॉइल रखा गया। खास करके रेड सॉइल इसलिए क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। हाँ, लेकिन वहीं पे इसमें न्यूट्रिशन बहुत कम पाए जाते हैं, साथ ही साथ ह्यूमस की मात्रा भी बहुत कम होती है। यहाँ पे खेती करना मुश्किल तो है, लेकिन ये यहाँ पे दाल की फसलें, कॉटन का उत्पादन किया जा सकता है। लेटराइट सॉइल, यह सॉइल जो है ये नेचुरली फर्टाइल नहीं होता है, उपजाऊ नहीं होता है, लेकिन अगर इसका सही उपचार किया जाए उर्वरक डाल करके तब यहाँ पे खेती किया जा सकता है। और ये सबसे ज़्यादा जूट, फूडर क्रॉप, चरवाहे के लिए, गाय अपने पशुओं को जो चारा खिलाते हैं उसके उत्पादन के लिए ये सबसे ज़्यादा सटीक है। एरिड एंड सैंडी सॉइल, यह सॉइल जो है खास करके शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे कम होती है, साथ ही साथ इसमें मॉइस्चर भी बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे खेती किया जा सकता है अगर हमें एडुकेट रूप से इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए तो। माउंटेन सॉइल, यह सामान्य रूप से कहा जाए तो वह संकीर्ण छोटा सा भाग होता है जहाँ पे कहीं पे पहाड़ों के ऊपर में समतल सतह पाई जाती है, वहाँ पे पेड़ पौधों के पत्ते या मृदा मिलती है। नहीं तो स्लोप साइड में अगर देखा जाएगा तो इस तरह की मृदा नहीं मिलती वहाँ पे पहाड़ों पे। जहाँ कहीं भी फ्लैटर एरिया होता है वहाँ पे मृदा मिलती है, वहाँ पे वेजिटेशन भी ग्रो करते हैं, लेकिन जहाँ पे स्टीपर है, ढालू भूमि होती है, वहाँ पे नहीं मिलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, इरोजन की जितने भी एजेंट्स हैं जैसे कि हवा, पानी और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण, जो कि सॉइल के ऊपरी लेयर को घिसकाकर अप्रदन कर सकती है, उसको मृदा अप्रदन कहते हैं। ये मृदा अप्रदन जो है, सॉइल इरोजन जो है, मृदा के उत्पादन, सॉइल के जो फर्टिलिटी है उसको कम कर सकती है, घटा सकती है। वो क्या करती है, सबसे ऊपरी जो लेयर होता है, सरफेस लेयर, उसको उड़ाकर, बहाकर या खिसका कर कहीं दूसरी जगह ले जाएगी, तो उससे क्या होगा, उस ज़मीन पे कुछ पैदावार नहीं हो सकता है। इसी को हम लोग जो है सॉइल डिग्रेडेशन भी कहते हैं। हम इसको बचा सकते हैं, इसको रोका जा सकता है निम्नलिखित जो नीचे दिए गए तरीके हैं उससे। मल्चिंग, मल्चिंग एक कवरिंग
कवर करने का एक तरीका होता है, जहाँ पे जैसे खुला क्षेत्र होगा उसको प्लांट के सहारे एक लेयर बनाकर, या फिर जैसे कि पुआल, जो कि चावल का जो सूखा हुआ हिस्सा होता है उसको बिछाकर या पीठ को बिछाकर हम क्या कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, लेयर बचा सकते हैं मिट्टी को उड़ने से। जिससे खास करके अगर देखा जाए तो मैदानी भागों में इस तरह से क्रियाएं की जाती है। खेती के बाद लोग जो हैं डंठल, खेतों में जो डंठल जो है फसलों के छोड़ देते हैं, ताकि उसमें जब कभी भी कोई जुताई हो तो मिट्टी ढीला पड़ने के बाद हवा के संपर्क में आके बह नहीं जाए, उड़ नहीं जाए, उसके लिए। कंटूर बाइंडिंग, कंटूर बाइंडिंग जो होता है वो खास करके पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पे एक समान ऊंचाई वाले चट्टान जो होते हैं वो नीचे के गुरुत्वाकर्षण में आकर खिसक सकते हैं। उसको रोकने के लिए एक समान ऊंचाई पे इन पत्थरों को बांधकर या फिर उनको कोई बैरियर लगाकर रोकने का उपाय किया जाता है। साथ ही साथ इस पर चेक किया जाता है, एक रास्ता बना दिया जाता है कि पानी जो है इनके बीच से निकलता रहे, पानी रुके नहीं। टेरेस फार्मिंग या पहाड़ी क्षेत्रों में किए जाने वाले ढालू भूमियों के ऊपर में किए जाने वाले खेती की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें लोग जो है उन ढालू भूमियों पे जहाँ पे मृदा उपजाऊ है सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि क्रियाकलाप करते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट और कुछ हिस्से जो है उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पे खेती किए जाते हैं। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रीकरण, इसमें मृदा को हम बचा सकते हैं, खास करके तब एक ही खेत पे एक ही तरह के फसल बार बार उगाने से क्या हो सकता है कि फसल के समय तक वो खेत जो है ढका रहेगा, लेकिन बाद बाकी समय में वो खेत खाली रहेगा। तो उससे क्या होगा, हवा पानी या किसी भी तरीके से वहाँ की मिट्टी जो है उड़ सकती है। तो क्रॉप रोटेशन के साथ क्या होता है, एक फसल काटने के बाद दूसरा फसल अगर उस पर लगा दे तो वही मृदा दूसरे फसल में आ जाएगी और उस पिछले फसल के बचे हुए कुछ हिस्से जो है उसमें सड़गल करके ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाएंगे। इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। शेल्टर बिल्ड, खास करके तटीय क्षेत्रों और शुष्क प्रदेशों की तरफ में जहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, उन जगहों पे उनके ऊपरी सतह के मिट्टी को बचाने के लिए श्रृंखलाबद्ध तरीके से, मतलब कि एक सीरियल वाइज, एक लेन में, एक लाइन में कई लंबी दूरी तक पेड़ों को लगाया जाता है, जिससे कि सीधी आने वाली हवा जो है, जो काफ़ी स्पीड से आती है इन क्षेत्रों में, उसका गति धीमा हो जाए और वहाँ की मृदा को वो ना उड़ा सके। प्लगिंग, यह खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ पे होता है जहाँ पे धीरे धीरे करते करते पानी जो है काफ़ी गहरा सकरा भाग बनाकर चैनल बना लेता है और उसमें बाद में गली फॉर्म कर लेता है, गहरा क्षेत्र, संकीर्ण क्षेत्र। उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है कि उन क्षेत्रों पे जगह जगह पे पत्थर डाल दिए जाते हैं, जिससे कि पानी जो ऊंचाई से गिर रही होती है उसका स्पीड धीरे से कम हो जाता है। इस मेथड को जो है, जो मृदा को बचाते हैं, इसको हम लोग प्लगिंग कहते हैं।